Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. Today I'm going to discuss few potential topics related to banking and finance for MBA and BBA projects in India, in reference to India especially. Many students have asked me that we are willing to prepare MBA projects in banking and finance. So what could be the potential topics? So today I'm listing out few 50 topics on which you can select anyone as per your convenience, because while selecting any topics you are required to first understand, means it's just a recap. First understand your specialization, then the industry in which you are working. Definitely you must be working in some banking industry, or you are doing your specialization in finance, then only you can consider any potential topics related to banking and finance, right? Now definitely means you should be exposed to some bank or any financial institution on which you can do your project. You need to have an exposure for any, means you should have an exposure, or means any tie up with any company, or either you're working executive in some banks, or as a student you can pursue any company for an internship program. Either your college or your university will provide an internship in any banks or any financial institution, then you can pursue any of this topics for your project. So let me discuss without wasting time. Now I'm going to discuss the topic that you can select. First is impact of GST on the Indian banking sector. We all are aware GST has impacted all the sector of Indian economy. So GST is a is a very recent phenomenon, right? So you can definitely understand or analyze the impact, means how it has impacted the Indian banking sector. So whenever you are means doing a project, it's important which company you are selecting. You need to select any company where you are doing the project, right? So now understand the concept of GST. What is GST, the history of GST, why it has been implemented, everything must be there in your project. And you also need to write about the Indian banking sector, then which company, means how it has impacted that company itself. You need to do a lots of research and then you can write. Second, analysis of non-performing assets in Indian bank. NP is a very common problem in Indian banks. Not only Indian banks, every bank. So non-performing asset, it's not a common, means it's not uncommon. It is very common thing. And choosing any bank, means you can choose any PSU or private bank. You will find this sort of problem is there. So analysis of non-performing assets here. If you are researching on this, then you need to select a few banks, then you need to go to that banks and then take the interviews of the managers or executives out there, take an appointment. This sort of research you are required to do, because in analysis of NPAs in Indian banks. So when I'm talking about Indian banks, either you can select any specific bank, then you will be doing that analysis in that specific bank. Or if you do a general analysis, then means if you're doing a general analysis of NPAs in Indian bank. So in Indian banks means there can be lots of banks. That time you need to do a vast research. Your scope of research will be very vast, that time वो बढ़ जाएगा. और जब आप specific, when you're selecting any specific bank, like in ICICI bank or in Canara bank, any bank I'm talking about, that time your scope of research is confined to specific bank only. So वो आपके लिए easy हो जाएगा. तो जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कैसे उसको परस्यू करने वाले हो, द वे द मेथोडोलॉजी दैट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट, ये आपके संग संग चलना चाहिए. पैरेलली यू नीड टू थिंक अबाउट इट. Role of fintech in transforming the banking sector in India. Now role of fintech, that time you need to do a lots of research. Fintech काफ़ी recent है, बहुत ज़्यादा नया है. fintech in banking sector, finance की जो टेक्नोलॉजी है, फिनेंस रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसको लेकर आपको बहुत सारे रिसर्च करने होंगे. यू नीड टू सेलेक्ट फिनटेक प्रोफेशनल, हाउ दे प्रिपेयर द फिनटेक एंड हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग. मीन्स बैंकिंग सेक्टर में कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कौन कौन से बैंक है, विच एवर बैंक हैज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड फिनटेक, वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा. Next is evaluating the effectiveness of digital banking in rural India. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप सेलेक्ट कर सकते हो डिजिटल बैंकिंग रूरल इंडिया में कैसे आ रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, राइट? कंपैरेटिव. फिफ्थ project that you can select is comparative analysis of public and private sector banks in India. ये काफ़ी हद तक theoretical होगा, बिकॉज यहाँ पर एक comparative analysis कर रहे हो, तो ईजी भी होगा ये प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जस्ट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स
इन इंडिया इसका आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हो। तो इंडिया में मीन्स हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स एग्जिस्ट इन इंडिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, अभी क्या है, अभी उनका करंट पोजीशन क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या है, ट्रेडिशनल और जो रिसेंट जो अभी जो डेवलपमेंट्स हुआ है वो क्या है। तो इट्स अ कंपैरेटिव एनालिसिस। बट येस, वॉट एवर प्रोजेक्ट्स यू सेलेक्ट, यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक जो लेते हो, you need to send it for to your university for getting the approval, because once your faculty give you the approval in your project proposal, आप पहले प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हो, प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव होता है, देन ओनली यू कैन परस्यू। तो मैंने इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं, यू कैन सिलेक्ट एनी वन, बट यू नीड टू सेंड इट टू योर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है। अब ICFI यूनिवर्सिटी में हो, ICFI की तो बात ही अलग है, उनका प्रोजेक्ट पैटर्न काफ़ी अलग है। NMIMS की अगर बात कर लो आप, NMIMS में भी आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजना होगा। एमिटी हो जाए या कोई भी यूनिवर्सिटी में, मकाउट की बात कर लो, मकाउट में यू गेट थियोरेटिकल, वहाँ पे आपको अप्रूवल ज़्यादा चांसेस है। मकाउट हो, कैलकटा यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे आपको थियोरेटिकल जो प्रोजेक्ट्स है उसमें अप्रूवल मिल जाते हैं मैक्सिमम टाइम। NMIMS में काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को ही अप्रूवल मिलते हैं। ICFI तो पूरा, ICFI तो पूरा पूरी एक प्रैक्टिकल उनका अप्रोच है। मतलब आप जिस मैंने जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस वेवर यू आर वर्किंग विद, कोई भी जहाँ पे वहीं का एक्सपोजर आपको देना पड़ेगा। Now, let's move on to the topic. Next topic, risk management practices in Indian banks. Again, same thing, risk management practices in any one bank. आपकी स्कोप कम हो जाएगी। इन इंडियन बैंक्स मतलब बहुत सारे बैंक्स को आपको इंटरव्यू करना होगा। एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज। तो ये आपका माइक्रो फाइनेंस किस तरीके से काम कर रहा है, दिस इज ऑल्सो वन टॉपिक, बिकॉज माइक्रो फाइनेंसेस जो होते हैं वो धीरे धीरे बैंक्स बन जाते हैं, लाइक बंधन बैंक। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। ये भी अच्छा एक टॉपिक है, वो थोड़ा थ्योरेटिकल ही होगा। ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन रिटेल बैंकिंग इन इंडिया, इजी टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन एंड रेगुलेशन इन इंडिया, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करनी होगी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन तो काफ़ी हुआ ही है, बट इसके रेगुलेशंस क्या हैं उसको लेकर थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोगों को। Assessing the performance of Indian banking stocks. Now Indian banking stocks again कि इंडियन बैंक्स जो हैं, HDFC बैंक, उनके भी अपने स्टॉक्स हैं इक्विटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। सो हाउ दे आर परफॉर्मिंग, यू नीड वर्क ऑन दैट। 12, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स बाय इंडियन बैंक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के लिए क्या कर रहे हैं इंडियन बैंक्स, मीन्स व्हाट दे आर डूइंग। जैसे कि जनधन योजना, जनधन योजना इज वन सच इंक्लूजन इनिशिएटिव्स है ना इंडियन बैंक्स। जनधन में सब कोई को इंक्लूड किया, इंक्लूजन का मतलब ही क्या है, हर कोई को इंक्लूड करना है। एवरी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द मेजर सिनेरियो, राइट। 9, number 13, analysis of mergers and acquisitions in the Indian banking sector। तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशन किस तरीके से हो रहा है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन टॉपिक विच यू कैन सिलेक्ट। द रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। नाउ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो किस तरीके से काम करती है फाइनेंशियल मार्केट में। नाउ वी ऑल आर अवेयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है, तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में तो काम करती है ना। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, पर पूरा मैक्सिमम ये थ्योरेटिकल होगा। ग्रीन बैंकिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी इज ऑलवेज अ वेरी, मतलब क्या बोल सकते हो, ये बूम है आज के डेट में, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स है ग्रीन। ग्रीन बैंकिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, इसके ऊपर आपको काफ़ी रिसर्च करनी होगी। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर, इसको ये रिसेंट ही है, 2 साल पहले के इम्पैक्ट है, तो वी कैन study and we can find a lots of improvements that has been done in the Indian banking sector. Lots of mergers and acquisition has also taken place after this COVID-19, so इसका आपको स्टडी करना होगा थोड़ा। एनालिसिस ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम। जनधन योजना क्यों आ जा रहा है बैंकिंग के अंदर, क्योंकि सिंपल सा बात है, ये जितने भी जो छूटे हुए थे हमारे जो पॉपुलेशन है, दैट वे लेफ्ट बिहाइंड, जो रूरल पॉपुलेशन है, जो मेन स्ट्रीम हमारी इकोनॉमी में नहीं थे, उनको लाया गया है। तो सारे पैसे जो बाहर थे वो दैट हैज़ कम इनटू द इकोनॉमी। इवैल्यूएशन ऑफ द RBI's मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी। अगेन आई एम रिपीटिंग वंस मोर, जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करो, विच एवर टॉपिक यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, आपको इसको अपनी यूनिवर्सिटी को सेंड करना है फॉर गेटिंग द अप्रूवल। Number 20, understanding the concept of Basel norms and its implication for Indian banks. Uncommon topic है,
बिकॉज बेसल नॉर्म्स पे कोई काम करता नहीं है ज़्यादा। ये क्रेडिट नॉर्म्स हैं, बैंकिंग नॉर्म्स हैं, बैंक किस तरीके से वर्किंग कैपिटल रिलीज करेगी, इशू करेगी, उसके नॉर्म्स हैं। तो उसको लेकर आप कर सकते हो। एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट एंड ग्रोथ ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन इंडिया, वेरी अनकॉमन टॉपिक ये वाला टॉपिक। इसको छुआ भी नहीं है, मैं भी इसको नहीं बोलूँगी ज़्यादा कुछ, क्योंकि इस पर रिसर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रूरल इंडिया, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम और उसका इम्पैक्ट जो है रूरल इंडिया में, डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन। एनालिसिस ऑफ क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन एंड यूसेज पैटर्न इन इंडिया, दिस इज वेरी गुड टॉपिक, आई कैन सिलेक्ट, आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन किस तरीके से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो बैंक से डायरेक्टली रिलेटेड है। Next, evaluating the efficiency of Indian stock exchanges. To some extent, it is related to your MBA banking and finance. Finance से ज़्यादा है, banking से कम. Role of credit appraisal in lending decision by Indian banks, काफ़ी important है ये वाला. Role of credit appraisal, ये वाला जो topic है number 25. जो क्रेडिट अप्रेजल है वो कैसे होता है और उसका लेंडिंग डिसीजंस पे कैसे इम्पैक्ट होता है। मतलब क्रेडिट अप्रेजल जो होती है, क्रेडिट टीम होती है, दे गिव द गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंगली बैंक्स नीड टू टेक देयर लेंडिंग डिसीजन। अब वो डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर, आरबीआई किस तरीके से अपना डिसीजन ले रही है, वेदर इट इज टाइटनिंग द क्रेडिट पॉलिसीज और वो लूज कर रही है, मीन्स वेदर दे आर फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी क्रेडिट पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर, वट एवर दे आर फॉलोइंग। इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। वेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया, गुड टॉपिक रिलेटेड टू फाइनेंस, नॉट ओनली बैंकिंग, ये बैंकिंग और फाइनेंस दोनों के लिए है। एनालिसिस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, काफ़ी अच्छा है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इन इंडिया, बिकॉज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मैटर कब आता है, जब आप लोन वोन की बात होती है, बैंक से रिलेटेड है तो फाइनेंस और बैंक दोनों का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया, फिनटेक, फिनटेक का ही सेकंड, मैंने जैसे अपने डिस्कशन किए फिनटेक के बारे में, सेकंड उसका टाइटल, दिस कुड बी अनदर टाइटल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडियन बैंक्स, वेरी गुड टॉपिक, वेरी स्मूथ, काफ़ी थियोरेटिकल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, अगेन सेम थिंग, वेदर यू आर चूजिंग इंडियन बैंक्स और यू आर सिलेक्टिंग एनी वन बैंक, दोनों में से एक आपको देखना है। एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, स्पेसिफिक रिलेटेड टू फाइनेंस। एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर टू पीयर लेंडिंग इन इंडिया, किस तरीके से हो रहा है। इवेल्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया। रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन पॉवर्टी एलिवेशन, अच्छा टॉपिक है। इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन ऑन इंडियन बिजनेसेस। एनालिसिस ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम, ये भी अच्छा है, अच्छा ये है। असेसिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। रोल ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये 38 जो टॉपिक है नंबर 38, ये पूरा पूरी फाइनेंस से रिलेटेड। रोल ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड्स, आप स्पेसिफिक ले सकते हो, कोई बैंक का म्यूचुअल फंड या कोई बैंक्स को लेकर आप ले सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ क्रेडिट यूनियंस इन इंडियन फाइनेंसेस, राइट, ये सब आपके फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक हो गए। एनालिसिस ऑफ गोल्ड लोन मार्केट इन इंडिया, बैंक रिलेटेड है, बैंकिंग। एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स एंड देयर इशुएंस इन इंडिया, ये पूरा पूरी आपका हो गया फाइनेंस का कॉन्सेप्ट, राइट। ये अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सेबी, रोल ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की बात हो गई। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंस हो गया। These are few topics as we have discussed. I hope you must have understood what could be the topics. Like ये वाला 50 नंबर जो टॉपिक है, रोल ऑफ इंडियन बैंक्स इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो इसमें फाइनेंस और बैंकिंग दोनों के ही टॉपिक्स इंक्लूड किया है मैंने। एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, दोनों बैंकिंग एंड फाइनेंस दोनों के टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको सिर्फ बैंक्स रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए तो वो भी मैं इंक्लूड करूँगी। आई होप मैं समझा पाई हूँ आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जहाँ पे आप विच यू कैन सेलेक्ट डेफिनेटली। मैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग जो मेन पॉइंट्स है, आपको पहले अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने होंगे जिसको आपको अपनी यूनिवर्सिटी को सेंड करना होगा। वंस यू गेट द अप्रूवल देन यू कैन प्रोसीड विद योर प्रोजेक्ट। दो हो सकता है, एक हो सकता है यू टेक सम जनरल और जेनेरिक सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट,
ट्रेडिशनल जो थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, और दूसरा होता है जहाँ पे आपको एक्चुअली काम करना होता है कंपनी को लेकर, कंपनी स्पेसिफिक, जहाँ पे आप रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होता है। रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट पे मार्क्स आपके ज़्यादा मिलते हैं, राइट? So best of luck student. I hope you like my video. So don't forget to subscribe and share, and do comment whatever else you means. You are free to ask any question. I'll try to answer your questions one by one in my YouTube channel as soon as possible. Thank you. Best of luck.